Hallelujah. Are you happy this morning? Can you see me? But I can't see you all. Anyway, check. let's give a hand to Pastor Samson. पास्टर जोसेफ के लिए एक बार ताली बजाएं. He's doing a wonderful job. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Praise God for this morning. आज सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद. Today, you and I are seated here because what Jesus did 2000 years ago. आज आप और मैं एकत्रित इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम किया 2000 साल पहले. Everybody thought Good Friday, everything is over. गुड फ्राइडे ये सब कुछ हो चुका है. Everybody thought it's over. सबने ये सोचा कि सब कुछ हो चुका है. But on the third day, लेकिन तीसरे दिन Jesus rose. यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ. And today is alive. और आज वो जिंदा है. And today you and I are here because he's alive. आज और आप और मैं इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि वो जिंदा है. And there's a beautiful song that says, because he lives, I can face tomorrow. और ये खूबसूरत गाना है जो हम गाते हैं क्योंकि वो जिंदा है इसलिए मैं को कल का कोई डर नहीं. You and I don't know what holds for tomorrow. आप और मुझे हमको नहीं पता कल क्या होगा. But one thing we know, our Redeemer lives. लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि हमारा उद्धारक जिंदा है. Praise God for this morning. आज सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो. We welcome you as Grace Fellowship. We welcome you all this morning into the presence of God. ग्रेस फेलोशिप में आप सभी का स्वागत है आज परमेश्वर की उपस्थिति में. Is there anybody who's come here for the first time? क्या कोई है जो पहली बार हमारे बीच में आया Can हो? we see your hands? आपके हाथ को आप खड़ा करके बता सकते हैं. Okay, there are some few hands. God धन्यवाद. bless you. धन्यवाद धन्यवाद. प्रभु आप सबको आशीष करे. We welcome you in the name of आप Jesus. सभी का स्वागत है प्रभु यीशु के नाम में. We thank God for the Grace Fellowship leadership. ग्रेस फेलोशिप के अगुवों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं. Pray for your pastor. आपके पासवान के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा. Most of the Grace Fellowship leadership are also doing their secular jobs. क्योंकि ग्रेस फेलोशिप के जो अगुवे हैं वो अपना व्यवसाय अलग से करते भी हैं. Along with their jobs, they will also serve the Lord. और अपनी व्यवसाय के साथ साथ वो प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं. Pray for your pastor, stand with him and help him and support him. और आपके पासवान के लिए इसलिए आप प्रार्थना कीजिएगा, उन्हें मदद कीजिएगा, उनकी सहायता कीजिएगा. Amen. आमीन. Even though we started the service very late, और आज हालांकि शुरुआत में थोड़ी देरी हुई I have a very less time to preach the word. और कम ही समय है हमारे पास प्रभु के वचन के लिए. Okay, there was a pastor who came to preach on a Sunday morning. एक पासवान जो है इतवार के दिन सुबह प्रचार करने को आए. He came well prepared. और बहुत ही तैयारी के साथ आए. He came with his notes. और अपने नोट्स को लेकर के आए. He came in the front with his Bible and the notes, and he was all set ready, and he stood at the pulpit. और नोट्स और सब कुछ लेकर के बाइबल लेकर के आगे आए और पुलपिट पर वो तैयार थे मैसेज देने के लिए. And the moment he looked at the audience, और जैसे उन्होंने लोगों को देखा, his wife held a note. उसकी पत्नी ने वहां से एक नोट दिखाया उनको. And the pastor saw the note. और पास्टर ने नोट को देखकर यूं सिर हिलाया. On the note it was written, kiss. और नोट के ऊपर लिखा था किस. Kiss. KISS किस लिखा था. The pastor's wife was not asking for a kiss, पास्टर की पत्नी किस के लिए नहीं मांग रही थी. saying, keep it short and sweet. उसमें लिखा था कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. So- छोटा और मधुर रखना. So I hope this morning my message will be short and sweet to you all because we are running short of time. वैसे भी कम समय की कमी है. आज मैं आशा रखता हूं कि आज का जो संदेश है आपके लिए छोटा सा संदेश और मधुर वाला संदेश. How many of you have bought your Bibles? कितने लोग आपके बाइबल लेके आए हैं. Your hard-bound Bible. No, don't show me your mobile. Your hard-bound Bible. और आपका हार्ड बाउंड बाइबल आप लेके आए हैं अगर Lift it up. तो उसको उठाएं. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें. Tell your neighbor, I have come with my Bible. पड़ोसी से कहें मैं अपना बाइबल लेके आया हूँ. With a smile and say, I come with my Bible. मुस्कुरा कर कहें मैं बाइबल लेके आया हूँ. This is only the word of God. ये परमेश्वर का वचन है. Purely the word of God. और एकदम पवित्र परमेश्वर का वचन है. Some of you will have your Bibles in your mobile. कुछ लोगों के पास अपने मोबाइल में बाइबल है. There is Facebook in that. उसमें फेसबुक भी है. There's Instagram. उसमें इंस्टाग्राम भी है. There's Google. उसमें गूगल भी है. There are all kinds of features. और बाकी सारी चीजें हैं. But the Bible, the hard-bound Bible, is the only word of God. और लेकिन जब किताब है जो बाइबल पवित्र शास्त्र है उसमें सिर्फ बाइबल ही है. How many of you will have Vodafone connection? कितने लोगों के पास वोडाफोन का कनेक्शन है. Only few. Airtel. एयरटेल कितने लोगों के पास है. Oh, good.
ज्यादा है। Okay, good. Can we put it on flight mode? आप उसको फ्लाइट मोड पे रख सकते हैं। Disconnect yourself with the world and connect with God this morning. थोड़ा समय संसार के साथ थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि परमेश्वर के वचन के तरफ हमारा पूरा ध्यान रहे। You have come into the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। Let tune your ears to God. आपके कानों को प्रभु के वाणी सुनने के There लिए are a तैयार lot करें। of things that are distracting you. बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ध्यान भटका There are दें। a lot of things that are calling you. बहुत सारी चीजें हैं जो हमको But बुलाती at the हैं। same time, this morning there is the voice of God. लेकिन आज परमेश्वर की वाणी And को आप God सुनें। wants to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाह But the रहा है Facebook is calling you. और वो आपको पुकार रहा है। The Facebook is calling you. लेकिन फेसबुक आपको पुकारता है। The Instagram is calling you at the same time. इंस्टाग्राम भी उसी समय आपको पुकारता है। There are a lot of things that are calling you. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको But बुलाती this हैं। morning, I tell you, church, this morning, disconnect yourself with the world and connect to God. लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप संसार के साथ डिस्कनेक्ट कीजिएगा और प्रभु की तरफ अपने ध्यान को लाइएगा। Can I hear amen? आमीन। Sunday morning, when you go to church, इतवार सुबह हम प्रभु के आराधना में जाते हैं I suggest, और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं put your mobiles on flight mode. आपके मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रख दीजिएगा। Very important. बहुत जरूरी है। You have come to meet the King of Kings. आप राजाओं के राजा के साथ मिलने आए हैं। He is most important for you at that moment. उससे ज्यादा अहमियत रखने वाला कोई और चीज नहीं है। And be prepared to receive from Him. उससे लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे। Praise God. Let's go into the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन की ओर अपने Come, ध्यान let's को turn बढ़ाएं। our Bibles to John the Gospel, यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर आए, chapter 20, उसका 20वां अध्याय and from verse 11 to verse 15. उसके 11 से लेकर 15 तक की आयतों को पढ़ेंगे। Can we have it on the screen? But Mary stood without at the sepulchre weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre. And see two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. And when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, said unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Okay, bas, thank you. Can you read in Hindi? हिंदी में भी पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 तक की आयतों को। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। Okay, let's read verse 15 once again. 15 आयत फिर से पढ़ेंगे। Jesus said unto her, Jesus said unto her, Woman, Woman, why weepest thou? why weepest thou? Whom seekest thou? Yes, She, supposing him to be the gardener, she supposed him to be the gardener, said unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him. tell me where Thou hast laid him. thou hast laid him. Bas, enough. और यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा Here है। we see Mary is asking Jesus. She thought he was a gardener. मरियम ने यीशु को देखकर पहचाना नहीं, उसने उस सब समझा कि ये माली है। And she's asking Jesus,
where have you laid him? और यीशु से वो पूछती है कि उसका शव आपने किधर रखा है, Where is he? कहाँ है वो, Where is Jesus? यीशु कहाँ है, Where is God? परमेश्वर कहाँ है। This morning my message is, where is he? और आज सुबह का संदेश यही है कि वो कहाँ है, Where is God? परमेश्वर कहाँ है। This is the question that the whole world is asking. Where is God? ये सवाल है जो सारी दुनिया पूछती है, परमेश्वर कहाँ है। The whole world is desperate to know where is God. पूरी दुनिया तड़प कर ये जानना चाहती है कि परमेश्वर कहाँ है। People are trying everything to, they're spending their money, their time to go looking for God, to know where is God. और वो अपना समय खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ये जानने के लिए कि परमेश्वर कहाँ है। We all know that 2000 years ago Jesus rose from the dead. और हम ये जानते हैं कि 2000 सालों पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा He ascended to the Father. और वो पिता के पास उसके दाहिने ओर जा He's बैठा। seated on the right hand of the Father. पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। But the world is asking one question, where is he? और लेकिन आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है, Where is God? कहाँ है परमेश्वर। Everybody's asking the question, where is God? हर एक जन ये सवाल पूछ रहा है परमेश्वर कहाँ है। You try to go preach the gospel to somebody वो कोई को आपसे समाचार अगर बताए and they ask you one question, where is God? और वो आपसे पूछे कि परमेश्वर कहाँ है, And we find it very difficult to tell people where is God. और हमको बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बताना कि परमेश्वर कहाँ है। Where is God? परमेश्वर कहाँ है। Can I have the light of the audience, please? Who's operating this? ऑडियंस का लाइट जरा चालू रखिएगा। Please put on the light. Can you give me on the monitor? Thank you. Can you give Pastor Joseph for me on the monitor, please? Okay. Where is God? परमेश्वर कहाँ है। There's a big question that the world is asking. और ये बहुत बड़ा सवाल है जो दुनिया पूछ रही है। If you try to preach the gospel, और जब हम सुसमाचार बताते हैं and there's a lot of debate that takes place, और बहुत सारा विवाद होता है and they keep asking us back, और फिर ये सवाल पूछते हैं लोग, have you seen God? क्या आपने परमेश्वर को देखा है, Where is God? कहाँ है परमेश्वर, How do you prove there is God? कैसे साबित करो कि परमेश्वर कहाँ है। And there's sometimes we struggle to tell where is God. और कई बार हमें ये जो है संघर्ष होता है बताने को कि परमेश्वर कहाँ है। In the 70s, 70 के दशक में one preacher was trying to preach the gospel to an atheist. और एक विचारक जो है सुसमाचार बताना चाह रहे थे और वो एक जो है नास्तिक को बता रहे थे। And we know now the atheist doesn't believe in God. और हम जानते हैं नास्तिक परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। The atheist says there is no God. नास्तिक ये कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। And this preacher was trying to tell him to believe in God. और ये प्रचारक उनको बताना चाह रहे थे कि आप परमेश्वर में विश्वास करो। And this atheist asked the preacher, have you seen God? और नास्तिक ने उसे पूछा क्या आपने परमेश्वर को देखा? The preacher said, no, I have not seen God, but I believe there is God. प्रचारक ने कहा नहीं मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है। The atheist said, I believe only when I see God. नास्तिक ने कहा कि भाई जब मैं देखूंगा कि परमेश्वर को तब मैं विश्वास करूंगा। Whatever I see, only I believe. जो भी मैं देखता हूँ मैं वही विश्वास करता हूँ। So the preacher asked, do you believe there is a Himalayas? और प्रचारक ने उसको पूछा क्या आप हिमालय है ये विश्वास करते हो? Have you seen Himalayas? क्या आपने हिमालय को देखा है? He said, no, I have not seen Himalaya. उसने कहा नहीं मैंने हिमालय को नहीं देखा है। So do you believe there's a Himalayas? तो क्या आप विश्वास करते हो कि हिमालय है? He said, no, I don't believe there's Himalaya. तो कहते हैं नहीं मैं विश्वास नहीं करता। Have you seen the Niagara Falls in Canada? तो कनाडा में नायगरा फॉल्स है क्या आपने उसे देखा है? No, he said, I have not seen Niagara Falls in Canada. तो कहता है नहीं मैंने नायगरा फॉल्स नहीं देखा। So do you believe there is a Niagara Fall? क्या आप ये विश्वास करते हो कि नायगरा फॉल्स है? He said, no, I don't believe there's a Niagara Falls. तो कहता है नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि नायगरा फॉल्स है। Then the preacher asked, have you seen your brain? तो प्रचारक ने उसे क्या तूने अपना दिमाग देखा है? भेजा। The atheist had to think. सोचने लग गया। He said, I have not seen my brain. कहता मैंने अपने भेजे को नहीं देखा। So the preacher said, do you believe that you have got a brain? प्रचारक ने पूछा क्या तू विश्वास करता है कि तेरे पास दिमाग है? Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Many a times, कई बार we as Christians also, हम मसीह लोग after knowing Jesus for many years, यीशु को कई सालों से हम जानते हैं, we also struggle too with this one question, where is God? लेकिन इस सवाल को लेकर हम भी संघर्ष करते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। Even though we go through problems, कई बार हम जब मुश्किलों से गुजरते हैं when we go through the deepest problem, और बहुत ही गहरे मुश्किलों से हम in the जब गुजरते deepest हैं, pain of our life, सबसे दर्दनाक अवस्थाओं we में might से be जब गुजरते हैं, praying,
जब हम प्रार्थना कर We रहे might be हो, believing. हम विश्वास कर We रहे might be हो, going to church. हम कलीसिया जा But रहे the हो, pain is not going away. लेकिन दर्द जा नहीं The रहा, problem is not going away. समस्या जा नहीं The रही, situation is going from bad to worse. और जो हालात जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं, And we are praying and day at time is going by. और हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, Days are going by. दिन बीतते जा रहे हैं, Months are going by. महीने बीतते जा No रहे हैं, answer for a prayer. हमारी प्रार्थना We का जवाब just नहीं होता, feel our prayers are hitting the roof and coming back. हमको ऐसा लगता है प्रार्थना छत को टकरा कर वापस आ रही है, And we may come to a place and asking God, where are you? और हम उस जगह पर आकर ये सवाल पूछ सकते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? I don't feel anything, God. मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, I'm praying. मैं प्रार्थना कर रहा I'm हूँ, going to church. मैं कलीसिया जा रहा I'm हूँ, very so faithful. और मैं विश्वास योग्य हूँ, But my problem is becoming worse and worse day by लेकिन day. मेरी समस्या बदतर होती जा रही है, Oh God, where are कि you? परमेश्वर तू कहाँ है? As believers also we may come to this place and ask this question, God, where are you? विश्वासी होने के बावजूद हम इस जगह पर आकर ऐसे ऐसे हालातों में आकर ये सवाल पूछते हैं। How many people have gone through this experience? आप इसमें से गुजरे हैं Let's कभी? be honest before God. परमेश्वर के सामने We आप जो है, have some part of our life we might ask God, where are you? आप विश्वास योग्यता से जवाब दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर ऐसे हालात आज आए हैं, Don't worry. चिंता ना कीजिए। There's a man of God in the Bible also who had this same experience. वचन के अंदर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो उसी अनुभव से गुजरा है। Let's go to Job chapter 23, अय्यूब के पुस्तक में आए उसके 23वें अध्याय में verse 8. उसके 8वें आयत के अंदर, Job chapter 23, verse 8. Yeah. Behold, Behold, I go forward, I go forward. but he is not there. He is not there. Here And- we see, hold on. Here we see Job is in the deepest problem. अय्यूब जो है अपने गहरे समस्याओं के अंदर ये कहता है, देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता। After Jesus, Job was the man who went through the maximum torture and persecution in his life. यीशु के बाद अगर कोई व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा सताव और सबसे ज्यादा मुश्किल से गया हो तो वो अय्यूब होगा। He lost everything. उसने सब कुछ खो दिया, He lost his family, he lost his property, he lost everything. और उसने अपने परिवार को खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, सब कुछ खो दिया उसने। Sitting on ashes, scratching all over his body. और वो राख में बैठा है, खुजला रहा है अपने शरीर को, His friends, his unbelieving friends are standing around. और उसके अविश्वासी दोस्त जो है उसके पास आकर उसको 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 सलाह देना चाहते हैं। His unbelieving wife is standing before him. जो अविश्वासी पत्नी उसके सामने खड़ी है, And Job is saying one thing, behold, look. Yeah, read. Behold, Behold, I go forward, I go forward, but he is not there. he's not there. And backward, I go backwards, but I cannot perceive him. I cannot perceive him. देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। Many times we go through same कई experience. बार हम ऐसी अनुभव से जाते हैं, Nowhere we can feel where is God. कहीं पर भी हमको ये महसूस नहीं हो पाता कि परमेश्वर कहाँ है। We are going through pain. हम दर्द से गुजर रहे हैं Everybody's looking to you और हर सारे लोग आपको देख रहे हैं and they're looking to your faith. और आपके चेहरे को देख रहे हैं, You don't know what to say. हमको नहीं पता क्या बोलना है। And where is God? परमेश्वर कहाँ है? I go forward. मैं आगे चलता हूँ। Job is saying, I'm trying my level best to see and feel about God, but nowhere I can see God. अय्यूब भी कहता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ परमेश्वर को देखने की, लेकिन वो मिलता नहीं। Behold, I go forward, देखो मैं आगे जाता हूँ but He's not there. परंतु वो नहीं मिलता, And backward, मैं पीछे हटता हूँ but I cannot perceive Him. परंतु वो दिखाई नहीं Next पड़ता verse, है। verse 9. 9 आयत पढ़ें। On the left hand, On the left hand, where he doth work, uh, but I cannot behold him. God is working, but I cannot see Him. जब वो बाईं ओर काम करता है मुझे दिखाई नहीं देता। Yeah. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Nowhere Job can feel about God. वो दाहिनी ओर से ऐसा छिप जाता है कि वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। Church is not only you and I who went through this experience. कलीसिया सिर्फ हम और आप नहीं है जो ऐसा महसूस करते हैं। Job also went through the same experience. अय्यूब को भी वही अनुभव हुआ। A time came in his life, God, where are you? और कई बार परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर तो कहाँ है? I go forward, मैं आगे जाता हूँ, I don't see Him. मुझे नहीं दिखाई पड़ता। I go backward, I don't perceive Him. मैं पीछे जाता हूँ, मुझे I वो know नहीं He's दिखाई working on the पड़ता। left hand side, but I cannot know where I can feel बाईं Him. ओर उसका काम वो करता है लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। You also might be believing God is at work, कई बार आप भी ये सोच रहे हो कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है, but I can't know where I can feel that He's working in लेकिन my मैं नहीं life. समझ पा रहा हूँ कि कैसे कर रहा है। This morning, where is God? आज सुबह ये सवाल है, परमेश्वर कहाँ है? Hallelujah. हालेलुया। Let's go forward and let's know where is God. आइए हम आगे देखें परमेश्वर कहाँ है। Let's turn our Bibles to Colossians chapter 1 verse 15. कोलोसियों के पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर आए, उसके 15वां आयत पढ़ेंगे। Yes. Who is the image of the invisible God,
the firstborn of every creature. He's speaking about Jesus. यीशु के बारे में ये कहता है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। Yeah. Then continue. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the And body. he is the head of the Body, body. Who? the church. Who is the head? Everybody say Jesus. वही देह है जो कलीसिया का सिर है। Read. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Yes. Read. उसके 16वें आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसने उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। This passage is speaking about Jesus. ये भाग यीशु के बारे में कहता है। It says he was there before Genesis chapter 1 verse 1. और ये कहता है कि उत्पत्ति पहले अध्याय पहले आयत से पहले यीशु था, The world was created through him. क्योंकि सारी वस्तुएं उसके द्वारा सृजी गई। He was there in everything. वो सभी में मौजूद था। He is the head of the church. वो कलीसिया का सिर है। He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा और He ओमेगा is the है। everything. वो सब कुछ है। He is Jesus. वो यीशु है। Where is he? कहाँ है? Let's go to verse 26. उसे अध्याय में 26वें आयत के अंदर आए। Even the mystery which had been hid from ages, Even the mystery which had been hid from ages, hidden from ages. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। Paul is bringing a mystery. पौलुस जो है एक भेद के बारे में कह रहा है। Paul writes lot of mysteries in his letters. और पौलुस ने अपने पत्रियों के अंदर बहुत सारे भेद की बातें लिखी हैं। Mystery that was hidden for ages. ऐसे भेद जो सदियों से छुपाई गई हैं। And he brings out lot of mysteries to the church. और ऐसे भेद को जो है कलीसिया के सामने वो ले आ रहा है। He is telling to the church, behold, I'm giving you lot of mysteries. कलीसिया को कह रहा है कि देखो मैं तुमको एक भेद की बात बताता हूँ। He says, I tell you a mystery. कि देखो मैं तुमको भेद की बात We बताता shall हूँ। all not sleep. We shall all not sleep. हम सभी लोग सो नहीं जाएंगे। But at the trumpet sound, at the twinkling of an eye, we all shall be raptured. लेकिन तुरही की आवाज सुनते ही, आंख पलकते ही हम सब जो है उसके साथ मिल जाएंगे। So here he's giving a mystery. तो यहाँ पर वो एक भेद बताता है। He says, even the mystery which had been hidden from ages. कहता है वो भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा है। For ages, the Old Testament saints never knew this mystery. और पुराने नियम के अंदर कहता है कई सारे भेद हैं। For the Old Testament saints never knew this mystery. पुराने नियम के संतों को पता था कि ऐसा एक भेद है। Moses never knew this mystery. मूसा को नहीं पता था कि Abraham ऐसा doesn't भेद know है। this mystery. और उनको नहीं पता था कि ये भेद है। Jacob doesn't know about this mystery. याकूब को नहीं पता था कि ऐसे भेद हैं। The Old Testament saints doesn't know about this mystery. पुराने नियम के संतों को इस भेद के बारे में नहीं पता था। Read, brother. even the mystery which had been hid from ages and Yes. from generations, From generations, but now is made but manifest, now is made is made manifest to his saints. whom? To his saints. अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट हुआ है। There is a mystery that was hidden from एक ages, ऐसा भेद है जो पीढ़ियों से गुप्त रहा है। which Abraham never knew, अब्राहम को नहीं पता था, Jacob never knew, याकूब को नहीं पता था, Isaiah never knew, ऐसे को नहीं पता था, but the church is revealed to the church. लेकिन कलीसिया के ऊपर वो प्रकट हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Look at the next verse. What is the mystery? अगला आयत देखें, भेद क्या है? To whom God would make known To whom God would make known what is the riches of the glory the riches of his glory of this mystery among the Gentiles, among the Gentiles. You and I are the Gentiles. which is Christ in you, the hope of glory.
Hallelujah. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता What is the है। mystery? भेद क्या है? Christ in you. मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। Where is he? कहाँ है वो? Christ in you. मसीह तुम में Hallelujah. रहता है। हालेलुया। This morning you're seated with Jesus enthroned in your life. आज सुबह आज आप बैठे हैं, यीशु मसीह आपके हृदय में सिंहासन पर Paul बैठा है, says this was a mystery. और ये भेद है, कई संतों के The लिए Old भेद था। Testament saints couldn't have it. पुराने नियम के लोगों को ये समझ नहीं आया, They couldn't enjoy this. उनको वो इस बात को नहीं समझ But the पाए। day you knew Jesus Christ as your Lord and Savior लेकिन जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना and उद्धारकर्ता जाना received Him in your और heart, आपने अपने दिल में उसे ले लिया, Christ is in you. मसीह आप में रहता है, The hope of glory. महिमा की आशा है। Hallelujah. Hallelujah. Let's go forward. Let's go to 2 Corinthians chapter 4 verse 6. दूसरे कोरिन्थियों के 4 अध्याय में उसके 6 आयत को पढ़ेंगे। For God who commanded the light to shine out of darkness Verse. For God who commanded the light to shine out of darkness. Yeah, read. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। Paul is referring to Genesis chapter 1 verse 3 where when the earth was created, it was full of darkness. और पौलुस जो है जहां पर उत्पत्ति के अंदर सृष्टि का बयान दिया गया, उसने कहा जहां पर अंधकार भरा हुआ था वहां पे परमेश्वर उजियाला ले आया। Darkness in Hebrew was ignorance. और इब्रानियों के अंदर जो है अंधकार का मतलब है अज्ञानता। Everything was in a mess. सब कुछ जो है बिगड़ चुका है, Everything was confusion. सब कुछ जो है उलझन में है, There was no purpose. उसके अंदर कोई मकसद नहीं है। And it says, and God commanded the light to shine in the darkness. और इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा कि इसी अंधकार के अंदर ज्योति चमके। When God said, let there be light, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, everything came to purpose. सब कुछ अपने मकसद में The आ गया। same God. वही परमेश्वर। Paul says, और पौलुस ये कहता for है God had commanded the light to shine out of darkness. कि वो परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। That same God वही परमेश्वर has shined in our वो hearts हमारे हृदयों में चमका रहा to है, give the light of the knowledge of the glory of God परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति को in the face of Jesus वो Christ. यीशु मसीह के चेहरे के अंदर The प्रकाशमान। moment you received Him, जिस दिन आपने, जिस क्षण आपने उसे पा that लिया, light that spoke in Genesis chapter 1, उत्पत्ति पहले अध्याय में जो उजियाला चमका, जो that परमेश्वर के वचन same के अनुसार, powerful light वही उजियाला is come into your वो life. आपके हृदय में आ चुका है, It's shining in वो you. आप में चमक रहा है। Where is He? कहाँ है वो? He is in you. Christ in you. वो मसीह आप ही के अंदर है। And then Paul says, Christ in you, the hope of glory. पौलुस ये कहता है कि मसीह तुम में है, वो महिमा की आशा है। I want you to listen carefully. ध्यान से सुनिएगा। Christ is not the hope of glory. Christ is not the hope of glory. मसीह महिमा की आशा नहीं है, Christ in you. मसीह आप में है तो महिमा की आशा है। How many people got it? समझ पाए हैं? समझ पाए हैं? You and I are the glory of God. आप और मैं परमेश्वर की महिमा है। In your workplace, you are with the glory of God. आप जहां काम करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा है। In your office, in your home, you are with the glory of आप God. अपने घर में हो, आप परमेश्वर की महिमा है। When you go through difficult situation, जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, let the glory of God be seen. वो महिमा आपके अंदर से दिखाई पड़े, That will bring hope to the lost world. और वही जो है इस खोई हुई दुनिया को आशा दिलाएगी। The more the glory of God, जितना ज्यादा परमेश्वर की महिमा, the more the world will see उतना Jesus. ज्यादा दुनिया परमेश्वर को देखेगी। Let Christ be in you. मसीह आप में हो। Where is He? कहाँ है वो? He is in you. वो आप में है। Bring glory and hope to the lost world. परमेश्वर की महिमा आपके अंदर से ऐसे चमके कि खोई हुई दुनिया को आशा दिखाई दे। Isaiah saw this 2700 years before. और आइज़ाया ने ये बात जो है 2000 सालों से ऊपर पहले देखा। Let's go to Isaiah chapter 6 आइए verse उसमें 1. जाएं, आइज़ाया उसके 6 अध्याय में जाएं। Isaiah chapter 6 verse 1 onwards. यशायाह उसके 6 अध्याय और उसके पहले आयत से। In the year that King Uzziah died, Uh, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. His train filled the temple. Yeah.
Above it stood the seraphims. Uh, Each one had 6 wings. Uh. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, Uh. and with twain he did fly. Here we see Isaiah seeing the glory of God. जिस वर्ष उजिया राजा मरा उस मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा He's having an upward vision with God. और वे परमेश्वर की महिमा का दर्शन He's यशायाह seeing कर रहा है। all the Almighty Jehovah God seated and enthroned. सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, उसका दर्शन कर And रहा the है। seraphims flying around with the 2 wings covered their eyes, and the 2 with their feet, and with the 2 with their flying. और साराफ जो है दिखाई दिए, जो 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढंप रहे थे, 2 पंखों से अपने पांव को 2 पंखों से उड़ रहे And they थे। were crying, holy, holy, holy. और वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। And he's seeing the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा का दर्शन करता Then है। seeing let's go to verse 3. उसके तीसरे आयत में देखें, And one cried unto another And one cried to another and said, Holy, 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 holy is the Lord of hosts. is the Lord of hosts. The whole earth is full of The his whole glory. earth is Full of his glory. full of his glory. वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। Isaiah seeing what is being prophesied for the future. और यशायाह ने ये दर्शन देखा जो नबूवत भविष्य की थी। He says the whole earth is full of his glory. ये नबूवत उसने की, सारी दुनिया उसकी तेज से भरपूर है। When Isaiah was prophesying, जब यशायाह ये नबूवत कर रहा था, the glory of God was only in Israel. और वो परमेश्वर की महिमा केवल इज़राइल में दिखाई पड़ी थी, And the glory of God was only in Jerusalem. यरूशलेम में दिखाई पड़ी थी, The glory of God was only in the tabernacle, in the holy of holies. और परमेश्वर की महिमा जो है मिलाप के तंबू में, उसमें अति पवित्र स्थान में दिखाई It used पड़ी to come थी। only once in a year, and the glory of God was manifested in Israel. साल में एक बार वहां पर होता था, परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ती थी। But Isaiah is saying a time is going to come. लेकिन यशायाह कह रहा है नबूवत कर कर के एक समय ऐसा आएगा। What is it? और वो क्या है? The whole earth is going to be filled with the glory of God. सारी दुनिया उसके तेज से भरपूर होगी। Today you and I are the glory of आज God. आप और मैं परमेश्वर की महिमा The है, glory of God is not in a mountain. और परमेश्वर की महिमा कोई पर्वत पर नहीं है, It's not on a वो building. कोई इमारत में नहीं है, It's not on the वो trees. कोई पेड़ पर नहीं है। The whole earth is filling with the glory of God. सारी दुनिया परमेश्वर की महिमा से भरपूर है। Hallelujah. हालेलुया। Where is he? कहाँ है वो? Christ in me, the hope of glory. मसीह जो मुझ में है, वो महिमा की आशा When है। you go through problem, जब आप समस्याओं से when गुजरे, you go through pain, जब आप दर्द से when गुजरे, you go through difficult situations in your life, मुश्किल हालातों से जब गुजरते हैं, just know one thing. एक बात को The जानिएगा, glory that Isaiah saw, जो महिमा यशायाह ने the दर्शन में glory that देखा, Isaiah saw यशायाह ने जिस महिमा को is दर्शन में in देखा, me, वो मुझ में है, is in me. वो मुझ में है, It's working in me. मुझ में काम कर रहा है। I'm not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। Believe this morning, church. आज इस सुबह को हम विश्वास करें This खलीसिया, morning, believe. आज इस विश्वास करें As you खलीसिया। keep praying, know that it's working in your life. जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये जानिएगा कि आपके जीवन में वो काम कर रहा है। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो आप में है, वो महिमा की Hallelujah. आशा है। Where is हालेलुया। he? कहाँ है वो? He is in me. वो मुझ में है। Everybody lift your hand and say, सब अपने Christ हाथों को in me. उठाकर ये कहिएगा, Christ in me, मसीह मुझ में, the hope of glory to the Lord. महिमा की आशा है। Come, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं। Let's go to Matthew chapter 18, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के अंदर आए, verse 20. उसके 20वां आयत। For where 2 or 3 are gathered together in my name, In my name, there am I there I am. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। First thing is in us. पहली बात वो हम में है। The second thing the Bible encourages and says, where 2 or 3 are gathered in my name. दूसरी बात जो बाइबल प्रोत्साहन करके हमको ये कहती है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। This morning we have come in the name of आज हम Jesus. यहाँ पर यीशु के नाम से इकट्ठा हुए हैं। We are fellowshipping in the name of हम Jesus. यीशु के नाम से संगति कर He रहे is हैं। here right in our midst हमारे बीच में through मौजूद the है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा and is encouraging us and ministering to us. हमें प्रोत्साहन दे रहा है, हमसे बात कर रहा है। So just imagine I'm going on the road. I'm driving on my two-wheeler. और सोचिएगा कि मैं अगर रोड से जा रहा हूँ अपने 2 व्हीलर लेके जा I'm रहा हूँ, driving a bike.
बाइक पे जा रहा हूँ and suddenly I see brother Samson on the way. और अचानक से मुझे पास्टर जोसेफ दिख जाते हैं And I say, hi Samson, और मैं उनसे कहता हूँ हाय पास्टर जोसेफ, how are you? कैसे हो आप? Then he stops his vehicle and we stop and we talk for some time. तो वो गाड़ी रोक देते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, I say, let's have chai together. चाय पीते, चलो Chalo, let's have chai. चलो चाय पीते हैं। And I sit with Samson और मैं उनके साथ बैठता हूँ and I share my problems with him. और अपने दिल की हालात को बताता हूँ And I tell him this is what I'm going through. और मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ बताता हूँ। And Samson listens it very carefully, quietly. और मेरे ध्यान से मेरी बात सुनते हैं वो। And Samson says, can I pray for you? और वो कहते हैं क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता I हूँ? said, please pray for me. और देखिए हाँ कृपया प्रार्थना कीजिए। And where 2 or 3 are gathered, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं he is there. वो वहाँ मौजूद है। Wherever you are, जहाँ कहीं भी हो Jesus is there. यीशु वहाँ है। Don't stay alone. Don't stay alone. आप अकेले नहीं हैं। Find your friend. एक दोस्त को ढूंढें। Go to your pastor. आपके पास्टर के पास जाएं। When you have problems, जब आपके पास समस्याएं हैं run to your pastor. आपके पास्टर के पास जाएं। Run to your spiritual friend. आपके आत्मिक दोस्त के पास जाएं। Spend time with him. समय बिताएं। Share your problems. अपने प्रॉब्लम को And बताएं। believe he is there in your midst. और ये हम विश्वास करते हैं आपके मध्य में वो है। Amen. आमीन। Where is he? कहाँ है वो? He is in us. वो हम में है। Where is he? कहाँ है वो? Hey, where 2 or 3 are gathered, he is there in my जहाँ name. 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उसके नाम में उसके बीच में वो मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। Let's go forward. Matthew chapter 28, आगे बढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय verse 20. उसका 20वां आयत। teaching them to observe all things whatsoever Whatsoever I have commanded you. I have commanded you, And lo, lo, I am with you I am with you always, always, even unto the end of the world. end of the world. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। There's one more promise that Jesus said, I am with you. Where is he? He is with you to the end of this world. एक और वायदा जो यीशु मसीह ने कहा कि वो कहाँ है, उसने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग The हूँ। world is passing by. दुनिया बीतती जा रही है, Lot of things are changing. बहुत सारी बातें बदल रही हैं। What you see today, you don't see tomorrow. आज जो देखते हैं कल दिखता नहीं। Your parents are there for you with you for some time. आपके माँ बाप आपके साथ कुछ समय तक हैं, Your friends are there with you for some time. आपके दोस्त कुछ समय तक है। A time will come they have to leave this world. एक समय आएगा जब सब छोड़ के चले जाएंगे And all your contacts are gone. और आपके सब कॉन्टेक्ट चले जाएंगे All the deepest wonderful people you had are gone. और आपके सबसे करीबी सबसे अच्छे लोग But वो there सब is चले a जाएंगे। God. लेकिन एक परमेश्वर है, He says one thing. वो एक बात कहता I है am with you. कि मैं सदा तुम्हारे Your parents संग are हूँ। gone, your friends are gone, your work is gone, everything's gone, everything is changing. सब कुछ जब बदल रहा है आपके रिश्ते नाते सब दूर चले जाएंगे एक दिन, लेकिन वो कहता है मैं सदा तुम्हारे संग But हूँ। one thing he says, I am there with you to the end of this age. मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग The हूँ। world is passing by. दुनिया बीतती जा रही This है। world that we see, we will not see tomorrow. ये दुनिया जो हम आज देख रहे हैं कल नहीं देख But there's पाएंगे, an eternity. और लेकिन एक अनंतता है। There's an eternity that is promised to each one of us. एक अनंतता है जिसके बारे में हमको वायदा दिया गया है। Our friends may be there with us for eternity or may not be there with us for eternity. हमारे दोस्त हमारे साथ अनंतता में होंगे शायद ना भी होंगे। Our closed ones may be with us for eternity or may not be with us. हमारे करीबी हमारे साथ होंगे शायद ना भी होंगे। But there is a Jesus. लेकिन एक यीशु है, He says, I am with you. वो कहता है कि मैं To the end of this सदा तुम्हारे world. संग हूँ जगत के अंत तक। You can hold on to him. उस वायदे को आप थाम सकते हैं। Only one person you can hold on to is एक ही व्यक्ति है Jesus. जिसको आप थाम कर रख सकते हैं, वो यीशु है। Hold on to him. उसको थाम कर रखें। I am with you. उसने कहा मैं To the तुम्हारे end of संग this हूँ world. जगत के अंत Where तक। is he? कहाँ है वो? He's there right inside your heart. वो आपके हृदय में है। Hallelujah. हालेलुया। Where is he? कहाँ है वो? He is there when 2 or 3 are gathered in my name. जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उसके बीच में वो Where है। is he? कहाँ है He वो? is that for eternity, for eternity. अनंतता तक वो हमारे संग है। Come, let's all stand in the presence of आइए अपने God. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Let's all stand in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। This morning, आज सुबह you might be wondering, आप ये सोच रहे होंगे where is God? परमेश्वर कहाँ है? All kinds of questions. बहुत सारे सवाल, Because you may not have seen or experienced much about God. क्योंकि शायद आपने परमेश्वर को ज्यादा जाना नहीं।
But there's a deep question that you're battling inside. लेकिन बहुत ही गहरा सवाल आपके अंदर संघर्ष कर रहा है This Jesus, कि ये यीशु ये यीशु who was risen 2000 years ago, 2000 साल पहले जो पुनः उसका पुनरुत्थान हुआ, who ascended to the Father. जो पिता के पास जा बैठा। The Bible says he's seated on the right hand of the Father. बाइबल ये कहता है कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। This very same Jesus ये वही यीशु is there right inside of you. और आज आपके हृदय में मौजूद है। He is the hope of your glory. वो महिमा का आशा है। Whatever your situation may be, जो कोई भी हालातों में आप हो, whatever your pain may be, जो कोई भी दर्द में आप हो, don't leave him. उसको छोड़िएगा नहीं, Don't leave him उसको छोड़िएगा नहीं, through your pain, क्योंकि आपके दर्द के अंदर through भी, your problem, आपकी समस्याओं में through भी, your situation, आपके हालातों में भी, as is in you, वो आप में है। you can bring hope to the lost world. और जैसे वो आप में है, आप औरों को जो खोए हुए हैं उनको भी आशा दिला Hallelujah. Let's सकते lift हो। our hands. हाथों को उठाएं, Let's lift our hands and say, thank you, Lord, for being inside of me. परमेश्वर को परमेश्वर धन्यवाद कि वो Help मुझ me, में मौजूद है। help me to be the hope of glory मुझे मदद कर कि मैं महिमा का आशा बन to the पाऊं। lost world, जो खोए हुए लोग to my family, मेरे परिवार हैं to my in the workplace. और मेरे काम के स्थान पर, Oh, that I may be a hope of glory to my friends. मैं महिमा का आशा बन पाऊं मेरे सारे दोस्तों Thank के लिए। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। Hallelujah.
सच में प्रभु ये हम विश्वास के साथ ऐसा गा पाते हैं कि मेरा राजा, सब कहें मेरा राजा जीवित है। और क्योंकि मेरा राजा जीवित है, मैं उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा, उसके जय गीत को गाऊंगा। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे इस प्रेम के लिए, तेरी रहमत के लिए, तेरी महिमा प्रभु युगानो युग होती है और होती रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ समय के लिए बैठ जाएं। जब तक अभी हम कुछ समय एक स्किट देखने वाले हैं। क्या सब तैयार हैं स्किट के लिए? जब तक स्किट वाले आए तब तक जिस जगह से और जिस कल्चर से मैं आता हूं ना, वहां पे मैं लगभग यही दावा करता हूं कि मेरा खुदा जीवित है। और मेरे से अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि जीवित है तो कहां है? और उसका बहुत ही स्पष्टता से आज हमने संदेश सुना कि वो मुझ में है। पड़ोसी को देखो, बोलो वो तुझ में है। आज प्रभु यीशु मसीह को अगर संसार को देखना है तो उनको लोग और ये संसार हमारे द्वारा देखेगा। हमको देखकर लोगों को लगना चाहिए ये अलग है, ये यीशु है। पड़ोसी को देखो, बोलो यार तुम यीशु के समान हो। और प्रभु यीशु मसीह यहां पे आया भी इसीलिए ताकि हम दिन प्रति दिन, इंच बाय इंच उसके समान बनते जाएं। हालेलुया। और जब हम विश्वासी इकट्ठे होते हैं तो हम ये विश्वास करें कि जब हम प्रार्थनाएं करें तो यीशु हमारे मध्य में है। हालेलुया। आज इस संदेश को हम जरूर अपने दिलों में बिठाकर और अपने जीवन में उतार कर ही जाएं कि जहां कहीं भी मैं हूं, मेरे संग यीशु है, अभी, आज, कल और युगानुयुग। आमीन। सब कहेंगे आमीन। रेडी? ओके, थैंक यू। हमारे बीच कोई तो मिसिंग है। कौन? बॉस कहाँ है? बॉस किधर है? बॉस किधर है? बॉस किधर है? बॉस आ गए। अरे चुप, क्या बॉस बॉस लगा रखा है? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं ही बॉस है। कौन बॉस है? ए, मैं बॉस है। कौन है? अच्छा, अब बताओ हमारे जो विरोधी लोग हैं, अरे वो मसीह लोग, उनका जीवन कैसा चल रहा है रे? अरे वही बॉस, बीमारी में सड़ रहे हैं, पाप में सड़ रहे हैं, वही एक दूसरे के जलन में जलते हैं बॉस, वही गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं बॉस। ऐसे ही उन्हें उलझाए रखो, ठीक है? हमें उन्हें किधर लेके जाना है? नरक में। और उनके साथ ये 3 जरूरी बातें जो उन्हें नहीं करने देनी है। पहली बात, उन्हें प्रार्थना करने नहीं देना है। नहीं करने देंगे। दूसरी बात, उन्हें वचन पढ़ने नहीं देना है। नहीं पढ़ने देंगे। इससे अच्छा ना क्या करो, उनको ना मोबाइल में बिजी रखो, पिक्चर देखने में बिजी रखो, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टा, ऐसा कुछ तो बात में बिजी रखो, पर वचन पढ़ने नहीं देना है। और तीसरी बात और सबसे जरूरी बात, उन्हें नहीं देना है। नहीं देंगे। सुनो बॉस, एक भी विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है प्रार्थना। ए, अरे मैं नहीं
कोई विश्वासी मन लगा के प्रार्थना कर रहा है। मैं लेकर चलता हूं, चलो। यही है वो विश्वासी जो मन लगा कर प्रार्थना कर रहा है। क्या ये है वो? ये 1 महीने वाला? अरे इसको तो 1 ही महीना हुआ ना चर्च में आए। नया है बॉस, नया है। इसको ना हम ऐसे पकड़ेंगे। कैसे? ऐसे। बॉस बॉस, मैं जाता हूँ। देख, उसको ना पूरी तरह निराश करके आना, पूरी तरह। अरे बॉस, जला कर आऊंगा, जला कर। जा। छी, उसके अंदर से तो बदबू आ रही है, बदबू बदबू बदबू। पूछो कौन सी बदबू? जलन की बदबू। तू बहुत जलता है ना, जलने वालों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। उठ जा। कितना जलेगा रे तू? चर्च में जाता है ना, चर्च में जाता है ना। कोई तुझसे अच्छा गाता है, कोई तुझसे अच्छा गिटार बजाता है, तू उनसे भी जलता है। तू लूजर है, तू लूजर। तू कभी सफल नहीं हो सकता। तू बेकार है, बेकार। लूजर। देखा बॉस? वाह, तूने तो इसको प्रार्थना से उठा दिया रे। हाँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझ में जलन है, पर मैं परमेश्वर तेरे हाथों की रचना हूँ। प्रभु मुझे माफ कर ये सारी जलनों के लिए। जैसे कि तेरा वचन कहता है, प्रेम धीरजवंत, कृपालु और डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रभु, तू ये वचन के द्वारा मुझे प्रेम से भर, मैं तेरे समर्थ बन सकूं। अरे इधर आ, क्या करने को बोला था तुझे? बॉस, मैं उसे जलाकर आया था। जलाकर आया था? तू उसे प्रार्थना में तू उसको बढ़ाकर आया। खड़ा क्या है? भाग यहाँ से। बॉस, हट, चुप। कुछ काम का नहीं है तू। बॉस, मुझे जाने दो, मुझे एक वाइब आ रही है। कौन सी वाइब? बॉस, नेगेटिव वाइब। अच्छा, तो जा उसको पूरा नेगेटिव करके आ। बॉस, अब देखना उसको कैसे नेगेटिव करके आता हूँ। अरे अरुण, तू प्रार्थना कर रहा है? तू कैसे प्रार्थना कर रहा है? तेरे अंदर तो इतना गुस्सा, घमंड, लालच भरा हुआ है। तू कैसे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर तेरी प्रार्थना थोड़ी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्षमा करो। पर तू तो सब उल्टा करता है। तू अपने माँ बाप को उल्टा बोलता है, सब गलत करता है। परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तू तो एकदम दोगला इंसान है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगी। चल उठ जा। देखा बॉस, करके आया ना उसको पूरा नेगेटिव। वाह, ये तो रो रहा है। अरे ये तो खड़ा हो गया, अब ये प्रार्थना नहीं करेगा। प्रभु, ये गुस्से और जलन की वजह से मैं बहुत गिर गया हूँ। मेरे प्रभु, मुझे माफ कर दे। मैंने एक दूसरे पे प्रेम नहीं किया, मैंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया। प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हे प्रभु, मुझे नम्र बना ताकि मैं दूसरे को प्रेम कर सकूं, अपने माता पिता का आदर कर सकूं। ये पकड़, इसको पकड़ रे। अरे ये तो उसकी जिंदगी के पूरे पन्ने बदल गए। अब मैं क्या करूं? अरे तेरे पन्ने जला दूंगा। मार इसको, मार। कुछ काम का नहीं है ये ले तेरे काम का इनाम। क्या बॉस, 1 रुपया? ये लोग कोई काम के नहीं है बॉस। अच्छा, तो तू जाएगा रे? अरे बॉस, मैं छोटा पैकेट हूँ पर धमाका बड़ा करता हूँ। अच्छा, जा जा जा, उसको ना पूरा निराश करके ले गया। जैसा आपने बोला है वैसे ही करके आऊंगा बॉस। अरे अरे, तू प्रार्थना क्या कर रहा है? तू बीमार है, क्या हो गया तुझे? तू भूल गया है कि तुझे ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। कैंसर दिया है, कैंसर। प्रार्थना करके क्या करेगा?
प्रार्थना छोड़, परमेश्वर को कोस के मर जा। प्रार्थना करके कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर सड़े हुए बदन की नहीं सुनता। क्या बात है छोटे, तू तो उसको इतनी कड़वी बात बोल के आया, अब तो वो प्रार्थना नहीं करेगा। हाँ बॉस। हे बीमारी, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु, मुझे ये बीमारी से मुझे ठीक कर, जैसे तेरा वचन यह कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्रभु, हाँ, मैं चंगा हो गया हूँ परमेश्वर। इस वचन को मैं मेरे जीवन में बोलता हूँ परमेश्वर। प्रभु, मैं अधिकार से प्रार्थना करता हूँ कि बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा राजा है, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे इस बीमारी से ठीक किया। मैं विश्वास करता हूँ और मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तुझे क्या करने को बोला था? तू भी प्रार्थना में बढ़ा के आया। तू विश्वासी है रे, विश्वासी। नहीं बॉस। हट, चुप, कुछ काम का नहीं है तू। एक चांस मेरे को दे दे, एक चांस। हट, टाइम नहीं है अभी। यार, मैं कब से बोल रहा हूँ, जाने दो, मेरे को भी खेलना है। मेरी बात ही नहीं सुनते, जा रहा हूँ मैं। अरे रुक जा, इधर आ। तुझे ना मैं राइट हैंड मैन बनाऊंगा। तू राइट हैंड मैन बनाएगा? अब तो मैं उसको ऐसे लेके आऊंगा। कैसे? ऐसे, एकदम शताब्दी एक्सप्रेस। जा। क्या बॉस, आपने उसको राइट हैंड बना दिया? मेरे को कभी नहीं बना, इतने साल से उसको बना दिया। अरे वो नहीं जा रहा था ना, इसलिए मैंने उसको ऐसा बोला। अरे क्या प्रार्थना कर रहा है तू? तू जैसे पापी मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अरे कितना गंदा गंदा पाप करता है तू, याद दिलाओ मैं। तू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। छी, अरे मैं तो भूल ही गया, इसका नाम अरुण नहीं, इसका नाम तो पापी है। तू जवान है, उठ जा, चल पाप करते। मजा करने का उम्र है, चल ना, उठ रे। देखना अभी उठेगा बॉस, देखना। अरे तू तो उसको असली में उठा के लाया रे। तू तो राइट हैंड मैन बनेगा। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, जाने अनजाने में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। प्रभु, मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, जैसे कि तेरा वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरता है। प्रभु, मैं इस वचन को मेरे जीवन में बोलता हूँ परमेश्वर। प्रभु, तू मुझे पापों से शुद्ध कर दे। राइट हैंड मैन बनाने वाले थे ना, अभी इसको रैकेट से मारो बॉस। ए पकड़ रे, इसको पकड़। मम्मी, तुम लोग में से कोई कुछ काम का नहीं है, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अभी मैं जाता हूँ। अरे करना क्या है बॉस? मैं जाता हूँ बोला ना, सुना नहीं क्या तूने? अभी देख, मैं जाता हूँ, देखो तुम लोग। ऐसा लग रहा है कोई तो आ रहा है। बॉस, ये तो उन लोगों के चर्च का पास्टर है। क्या? ये पास्टर? इसकी और मेरी तो दुश्मनी है। जो भी विश्वासी को मैं नीचे गिराता हूँ, ये आ जाता है, बार बार उत्साहित करने के लिए बार बार आ जाता है। वो दुश्मनी इससे ही है। फिर आ गया। उठो अरुण। देखो फिर आ गया। अरुण उठो, मुझे परमेश्वर ने आपके पास भेजा। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थना की ओर है। आपको लगातार प्रार्थना करना है, जैसे दानियल ने प्रार्थना की थी, जैसे पौलुस और शिलास ने प्रार्थना की थी, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। ठीक उसी तरह आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपको प्रार्थना करना है, कोई भी हालात में, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, आपको प्रार्थना करना है। मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ। यही तो करने से रोकना था।
बॉस को मारता है रे। तो ये क्या किया आपने? हम तो उसे प्रार्थना करने से रोक रहे थे, आपने तो उसे दिला दिया। मेरे पास ना एक प्लान है, अपने ना एक साथ जाके अटैक करते, खत्म कर देते, उसको पूरा नाश कर देते। तू घमंडी है, तू घमंडी है, तू घमंडी है, तू घमंडी है। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। यीशु इन लोगों की प्रार्थना सुनते ही फटाक से आ जाता है। देखो आ गया, देखो आ गया। तू जा। अरे तुम लोगों से ये भी नहीं होता है, तो मैं करके दिखाता हूँ, देखो। मुझसे भी नहीं हुआ। अरे हमारे बीच आइए एक बार जोरदार ग्रेस ईस्ट के लिए और उनके लीडरशिप के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। एक बार फिर से हमने विटनेस किया कि जैसे याकूब 4 का 7 कहता है कि अपने आप को नम्र करो, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। हमें लड़ने का जरूरत नहीं, वी हैव टू सबमिट आवरसेल्व्स टू गॉड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बाकी सब हमारा यीशु कर देगा, क्योंकि यीशु। आमेन। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा सकते हैं हम प्रभु के लिए। आमेन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आप और अच्छा बजा सकते हो। एक बार फिर से देखकर बोलो आप और अच्छा बजा सकते हो। यस, ही डिजर्व्स। हालेलुया। वो योग्य है हमारी स्तुति, हमारी आराधना के। आमेन। हालेलुया। आइए आखिरी दुआ करके सभा को खत्म करते हैं। प्रभु जी, हम शुक्रगुजारी से आज इस सुबह के समय, इस दिन के समय भरे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने जो किया है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। तू जो कर रहा है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो खुदा। प्रभु, तुझे स्वर्ग का सिंहासन प्रभु नहीं भाया जब तूने देखा खुदा कि तेरे बच्चे परेशानी में हैं, तकलीफों में हैं, तो तुझसे रहा नहीं गया। तू उतर आया प्रभु उस महिमा के सिंहासन को छोड़कर उनके बीच में, और वही संदेश खुदा कि जहां दुनिया पूछ रही है कहां है वो, कहां है वो, तेरे परमेश्वर, तेरे दास ने स्पष्ट तरीके से बताया कि वो अब हमारे अंदर है। हालेलुया। वो हमारे अंदर बसता है, वो हमारे अंदर बसता है, वो हमारे बीच में चलता फिरता है। हालेलुया। तेरे शुक्रगुजारी से भरे हैं राजा कि तूने प्रभु अपना मंदिर हमें बना के रखा है खुदा, और तूने वायदा दिया प्रभु कि मैं दुनिया के अंत तक और उसके बाद अनंतता से अनंतता तक तुम्हारे साथ चलता रहूंगा, तुम्हारे साथ बसूंगा। तेरा धन्यवाद हो खुदा, तेरा धन्यवाद हो। आज भी दुनिया पूछ रही है कहाँ है परमेश्वर, परमेश्वर कहाँ है। तेरा वचन कहता है वो तो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो तो कलीसिया में बसता है खुदा। प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं इस समय कि जैसे अंतकिया की कलीसिया के लोगों को देखकर प्रभु लोग चीख उठे, पुकार उठे कि ये मसीह लोग हैं, ये मसीह लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मसीहत इनमें बसती है। प्रभु दुआ मांगते हैं कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी प्रेजेंस को अपने साथ रात और दिन लिए हुए चले। लोग देखने पाए उनके घरों में, उनके कार्यों के क्षेत्र में, दोस्तों के बीच में, जहां वो जाएं प्रभु,
देखने पाए कि इनके अंदर मसीह बसता है, इनके अंदर मसीह बसता है। खुदा प्रभु, कोई कमजोर है तो तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ उन्हें चंगा कर दे। कोई टूटा हुआ है तो प्रभु तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ आज उसे बांध दे। कोई बलहीन है तो तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ उसे बल से भर दे। कोई दर्द में है तो तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु आज उसे सांत्वना दे। अगरचे कोई परेशानी में है तो तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु उसका हौसला बन जाए। अगर कोई तकलीफ में है तो तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ उससे कहे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे अंदर बसता हूं और सदा काल के लिए तेरे साथ रहूंगा। खुदावंद, तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ यहां पर उपस्थित सारे लोगों को भर दे। जब वो यहां से जाए तो खुदा तेरी प्रेजेंस को हर जगह लेकर एक खुशबू जो तेरे अंदर है वो फैलाने वाले बन जाए। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे अंदर वो सामर्थ है कि जो हमने दुआ मांगी है हम देखेंगे आने वाले समय में। तेरी बड़ी महिमा को यीशु मसीह के नाम से अब हम ये दुआ आपके चरणों में लेकर प्रेम से सुन लीजिए। आमीन, हालेलुया। एक जोरदार ताली फिर से हमारे खुदावंद के लिए। और आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आशीष वचन ले लें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। सारी कलीसिया मिलके कहेंगे आमीन।